Let us now discuss the second example. Question देखिए आप क्वेश्चन क्या कहते हैं क्वेश्चन ये कह रहा है we have two vectors vector a and vector b. Vector a, it has got a magnitude of 30 and it is pointing along east, and vector b, it has got a unit magnitude of 40 units and that is acting along north. Now what could be the resultant of these two vectors, that is vector a and vector b? Okay, so अब ये देखिए question A is pointing towards east. All right, so let us make it clear what could be the directions. This is east, west, north and south. So we are having initially 30 units. So what I'm going to do is, let's see, 1 2 and 3. So here this vector represent vector A, and the scale what I'm going to use is, here let this be 1 centimeter. So one grid like this much equal to 1 centimeter. Okay, so 1 centimeter equal to 1 unit, sorry 10 unit, equals 10 unit. Okay, so this is vector A. Now 1 2 3 4, this is vector B, 40 units along north and A was 30 units along east. Okay, now here this could be the resultant vector, that is vector C. So what is vector C? This question's answer is going to be completed in two parts. First, we need to tell what is the magnitude of C, and second thing, we need to tell about the direction of vector C as well. Okay, we need to tell about the direction and we need to tell about the magnitude. First of all, let us have a look at that direction part, sorry, magnitude part. So this was direction of vector A, and it's very clear it's making an angle 90 degree. Vector B was making an angle 90 degree. So एनालिटिकल मेथड में हमने ये पढ़ा था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और सिंपली C भी लिख सकते हैं, that is under root of magnitude of A square, that is 30 square, plus magnitude of B square, that is 40 square, plus AB cos theta, A into B into cos of 90. आपको पता होगा cos 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है ना, एंड cos 0 1 होते हैं. Similarly sin 0 equal to 0 and sin 90 equal to 1. हमें सिर्फ इतना ही जरूरत है, ये चीजें it's not used over here, general information के लिए बोला. So of course yes, you know this whole part is going to be equal to 0. All right, so ये क्या होगा, this is going to be equal to, here 30 square means is going to give the value as 900, plus here this is going to be 1600. Okay, this will give the answer as 2500, which is equal to 50. So आपका जो AC जो वैल्यू है, C वेक्टर का जो वैल्यू है, या AC AO C वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आया, 50 आया. ऑलराइट, नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन. देखिए जब हम इसके डायरेक्शन की बात करें, it was like this. So देखिए this was vector A, this was vector B, this was vector A, and here this was C vector, and you can say C vector is making an angle alpha. Now tan of alpha has to be equal to B का magnitude 40, A का magnitude 30.
that is equal to 4 by 3. Okay, so alpha is equal to tan inverse 4 by 3. So that is the direction of C vector. C was make an angle alpha with respect to A, and the magnitude we already got it as 50. Let us come to the third example. You can have a look. मेरे पास इधर 3 वेक्टर्स है, वेक्टर A, वेक्टर B and वेक्टर C. वेक्टर A का मैग्नीट्यूड it is 3 which is acting along east. वेक्टर B का मैग्नीट्यूड 4 that is acting along north, and वेक्टर C उसका मैग्नीट्यूड है 5 and that is acting perpendicular to the plane that contains A and B. वो plane इधर मैंने create भी किया हुआ है. This is that plane. Okay. Now if D vector equal to vector A plus vector B plus vector C, what is the magnitude of D vector? That is a question. All right, देखिए. So first of all, I am going to create that plane. Okay, let this be that plane. Okay, so this is that plane. So we need to have first of all that 3 unit 1 2 3 vector A, so that is equal to 3, and vector B, this is vector B, so here this is 4. So you know that इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री होगा, है ना. सो ये हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर A प्लस B का. फाइन, ये 3 है 5 है 90 डिग्री एंगल, तो ये क्या आंसर क्या होगा 5 होगा, इसका मैग्नीट्यूड 5 होगा. सो दिस इज वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 5 आया. डायरेक्शन भी सेम थिंग है, ठीक है, ये डायरेक्शन. नाउ आपका जो थर्ड वेक्टर जो था दैट वाज वेक्टर C, वो इसके परपेंडिकुलर थी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर. उसका मैग्नीट्यूड कितना 5 था. सो इसके आपस में एंगल कितना होंगे 5 होंगे. सो ये भी 5 है, ये भी 5 है. कौन सा, इसका मैग्नीट्यूड भी 5 हो गया, एंड हियर ये हो गया आपका वेक्टर C, ये भी 5 हो गया ना, और इसके आपस में एंगल कितना 90 डिग्री. अब आप इस प्लेन में देखिए, कौन सी प्लेन में, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन आप अज्यूम करिए, ठीक है. ये प्लेन में कैसे दिखेगा मैं आपको बता देता हूँ कैसे दिखेंगे. सो दिस इज दैट प्लेन. अब टू डायमेंशनल व्यू पे आइए. दिस इज दैट प्लेन, ठीक है. A प्लस B तो ये है, दिस इज A प्लस B, और ये आपका C वेक्टर, ठीक है. वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड कितना था 5, ठीक है. वेक्टर C का मैग्नीट्यूड कितना था 5. तो ये हो गया आपका D वेक्टर, दिस इज योर D वेक्टर, ये 90 डिग्री है. सो D वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होंगे, D वेक्टर इक्वल्स A प्लस B 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हो गया ना, बिकॉज आपस में 90 डिग्री है. सो आगे का टर्म तो 0 हो जाएगा. ये क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स 5 स्क्वायर, इसके अंडर रूट क्या होंगे 5 रूट 2. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ D वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ D वेक्टर. होप यू गॉट इट. All right, this question, hello students, repeat this question. You need to solve it as a homework, okay, because you know why I'm putting up this question in between is that many of the students, I know that you people are not watching the video regularly, so I decided to put the homework questions in between so that it becomes mandatory to find words of the video, at least if you need to get the homework questions. So here comes your question. You have got two forces 5 Newton and 7 Newton acting on a particle at an angle of 60 degree between them.
I need to find out the resultant force. Now I can explain this question for you so that you can get into the solution as early as possible. आप F1 force 1 को F1 वेक्टर कंसिडर करिए, that is 5 Newton, and second force F2 जो है 7 न्यूटन आप अज्यूम करिए. कह रहा है F1 वेक्टर और F2 वेक्टर के बीच में कितना एंगल है. ये F2 वेक्टर हो गया. F1 वेक्टर और F2 वेक्टर के बीच में कितना एंगल कह रहा है, 60 डिग्री एंगल कह रहा है. सो अगर ऐसा है, so what will be the resultant? This has to be the resultant, isn't it? So this is going to be the resultant. So this resultant, let it be F vector. So F vector will be equal to F1 vector plus F2 vector होंगे. Okay, अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि रिजल्टेंट वेक्टर F का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है, एंड F वेक्टर जो होंगे वो F1 वेक्टर के साथ, F वेक्टर F1 वेक्टर के साथ क्या एंगल बनाएंगे. क्लियर है? So solve this. Here comes your second question for your homework. The question says, a motorboat is racing towards north at a speed of 24 km per hour. Water current at that region is 10 km per hour, 60 degree east of south. Find the resultant velocity of the boat. This is what the question says. All right. Now let me brief this for you. ये देखिए, let this be a source of water, ठीक है, and let us mark our conventional direction first of all, north, south, east and west. So मोटर बोट का जो स्पीड है वो कितना है, देखिए कितना स्पीड में 24 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है, और वाटर का जो फ्लो है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ. सो पहले आप देखिए साउथ फाइंड आउट करिए, और ये ईस्ट है ना, सो 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट मतलब ये हो गया डायरेक्शन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ. ओके, यानी कि साउथ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ. सो क्या हो गया, ये आपका, अब आप क्या करेंगे, अब आपको इसको अपना ओरिजिन मानिए, और इधर से इसको आपने ओरिजिन माना, जो डायरेक्शन में आपने ये जो मार्क किया होगा ना, सेम डायरेक्शन में आप इधर क्या ड्रॉ करेंगे, यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन ऑफ 10 यूनिट, और ये एंगल कितना 60 डिग्री, ठीक है. अब आप देखिए ये एंगल 60 है तो इसके बीच में एंगल कितना हो गया 120, यानी कि ये हो गया आपका ए वेक्टर, ठीक है, ये हो गया आपका बी वेक्टर, इसके बीच में एंगल कितना 120. नाउ ये थर्ड वेक्टर आपका रिजल्टेंट स्पीड बताएंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी बताएंगे. फाइन. सो दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी. सो वी सफिक्स RES रिजल्टेंट का शॉर्ट फॉर्म. सो आपको ये फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना होगा. सो दैट्स अ होमवर्क. Let us now discuss our next example, that is example number 4. देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, मेरे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर P एंड वेक्टर Q. ओके, नाउ वेक्टर P इक्वल टू वेक्टर Q है. नाउ लेट वेक्टर R be equal to vector P plus vector Q, and कंडीशन ये भी है R is also equal to vector P which was already equal to Q. मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ. जो वेक्टर P और Q का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, उसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड के बराबर है. ऑलराइट, अगर ऐसा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q? दैट्स अ क्वेश्चन. ऑलराइट, सो हमने ये पढ़ रखा है C इक्वल टू रिजल्टेंट, अगर A और B दो वेक्टर्स है और इसका रिजल्टेंट अगर C है, सो C इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. हमने ये पढ़ रखा है. हमारा जो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग टू C बोले तो R है ना,
A and B are P and Q respectively. So मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, P square plus Q square plus 2PQ cos थीटा लिख सकते हैं। हमें पता है P इक्वल टू Q इक्वल टू R है। सो P, Q एंड R सबको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ ओनली P। तो क्या हो जाएंगे, P इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इधर क्या होगा राइट हैंड साइड में P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर इंटू कॉस थीटा होंगे, है ना। फिर आप देखिए अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर कॉमन है, ऑलराइट। इधर क्या होगा 1 प्लस 2 cos थीटा होंगे, दैट इज इक्वल टू, ये देखिए अंडर रूट ऑफ क्या हो गया, ये दोनों तो 2 हो जाएगा, P स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 cos थीटा। ओके, तो ये क्या होगा, P इक्वल टू अंडर रूट के बाहर आ गया तो P हो जाएंगे, P स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आ गया तो P हो गया, 2 कॉमन है 1 प्लस cos थीटा, अब इन दोनों कट हो जाएगा, इधर क्या होगा 1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा। ओके, स्क्वायर करिए, लेफ्ट हैंड साइड में 1 ही रहेगा, राइट हैंड साइड में क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा। ओके, इसको इधर ले आएंगे, दिस इज गोइंग टू बी 1/2 इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। हमें थीटा का वैल्यू निकालना है, राइट। सो आप इसको क्या करिए, व्हाट यू नीड टू इज, इसमें से आप देखिए cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1/2 minus 1 which is equal to minus of 1/2। ओके, सो हमें मिला cos theta equal to minus of 1/2। okay, now please have a look at the table what's displayed over here। अब आपको ये देखना है cos theta का किस वैल्यू के लिए -1/2 आ रहा है। देखो ये हो गया cos theta वाला लाइन, इसमें आप देखिए किस वैल्यू पे -1/2 आ रहा है, ये देखो ये हो गया -1/2, किस पे 120 पे, है ना। सो आप ये लिख सकते हैं, हमारे पास cos थीटा इक्वल टू -1/2 है, एंड वी नो दैट cos ऑफ 120 डिग्री ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। अब आप मुझे बताइए थीटा का वैल्यू क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। सो यू कैन से दैट द एंगल बिटवीन P vector and Q vector equals to how much, 120 degree। Here comes your next homework question। देखिए मेरे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर A and वेक्टर B, alright, and वेक्टर A and वेक्टर B के बीच में एंगल, say this is वेक्टर A, this is वेक्टर B, इसके बीच में एंगल जो है that is, इनके बीच में एंगल जो है एंगल ऑफ सेपरेशन जो है that is 60 डिग्री। ओके, नाउ वेक्टर A का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, यानी कि A, this can be written as A by B also। okay, A by B the value is coming as 3/5, the ratio A by B equal to 3/5, and वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इसका जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B का जो मैग्नीट्यूड है that is equal to 35, that is equal to 35। now you need to find out what is vector A, this magnitude of vector A and magnitude of vector B।
Okay, you need to find out. So this is your next homework. Here comes your next example, that is example number 5. Example number 5 क्या कह रहा है? देखिए मेरे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर A and vector B. Okay, now the maximum value of vector A plus vector B, यानी कि वेक्टर A और वेक्टर B को ऐड करते हुए जो मैक्सिमम वैल्यू आपको जो मिल सकता है, okay, that is given as 29 units. Okay, and the minimum value of vector A plus vector B जो दे रखा है, that is given as 5 units. ओके, अब क्या किया आपने, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, आपने 3 यूनिट्स बढ़ा दिया. सो दिस इज गोइंग टू बी ए न्यू वेक्टर, से a dash vector in the same direction of a. All right, similarly वेक्टर b का भी मैग्नीट्यूड आपने 3 टाइम्स बढ़ा के नया वेक्टर बन गया आपका, that is b dash vector. Now what you are going to do is you are going to add vector a dash and vector b dash, okay, such that the angle between them is 90 degree. Okay, now you need to find out the magnitude of a dash vector plus b dash vector. इसका मैग्नीट्यूड क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है. सो लेट दैट बी c डैश वेक्टर. अब आपको c डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन ये था कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है, ये मैक्सिमम कितना था, मैक्सिमम वाज 29. ध्यान रखना इसका जो वैल्यू मैक्सिमम पता है कब होता है, मैक्सिमम होने का कंडीशन ये होना चाहिए थीटा इक्वल टू 0, और मिनिमम होने का कंडीशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री. ऑलराइट, नाउ cos 0 बोले तो 1 होता है एंड cos ऑफ 180 बोले तो -1 होता है. ओके, ये मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि मैक्सिमम और मिनिमा का क्या मतलब, मैक्सिमम 0 पे क्यों है, मिनिमम 180 पे क्यों है. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए आपके पास एक वेक्टर है उसका यूनिट 3 है और दूसरा वेक्टर है उसका यूनिट भी 3 है. मैक्सिमम चाहिए इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए जहां पे वेक्टर ए एंड हुआ उधर से वेक्टर बी उसी डायरेक्शन में स्टार्ट होना चाहिए, तब जाकर के इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा 6. एंगल देखिए थीटा इक्वल टू 0. अब मिनिमम का मतलब वेक्टर ए जहां पे एंड हुआ है उधर से ऊपर से डायरेक्शन में वेक्टर बी होना चाहिए. ओके, इधर थीटा क्या होगा 180 डिग्री होगा. समझ में आया कि 0 पे मैक्सिमम और 180 पे मिनिमम क्यों होता है. सो मैक्सिमम वैल्यू कितना था हमारा 29 और मिनिमम वैल्यू कितना था, वेक्टर a प्लस बी का जो मिनिमम मैग्नीट्यूड था, that was I think it was given as 5. okay, so अब 0 और 180 पे क्या होगा, देखो पहले c वेक्टर था ना मैग्नीट्यूड मैक्सिमम. ओके, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 हो गया, cos 0 बोले तो 1, तो क्या हो जाएंगे c इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, है ना. दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन. अब ये देखिए cos 0 का वैल्यू 1 था तो यहाँ पर क्या बन गया, ab बन गया. दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ, आप भी जानते हैं इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना. सो c का वैल्यू क्या हो गया, c इज गोइंग टू बी
A plus B. Now C dash vector. C dash vector क्या हो जाएंगे? That is under root of A square plus B, not C dash, minimum का condition. So this was the condition of maximum. अब मैं minimum value का condition ले रहा हूँ. Okay, गलत लिखा मैंने. This is wrong. Minimum value क्या? This was C max and this is, now what I am going to do is minimum value resultant. क्या हो जाएगा? Under root of A square plus B square plus 2AB cos of 180. मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ cos 180 का वैल्यू कितना होता है? -1. ठीक है, तो क्या होगा ये? So C का जो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए that is under root of, ठीक है, A square plus B square minus 2AB. This can be written as under root of A minus B the whole square, which can be written as A minus B. So C max, which was equal to 29, that is A plus B, and C minimum, that was equal to 5, that was A minus B. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 assume करो and let this be इक्वेशन नंबर 2. ऐड करिए आप. ऐड करते वक्त क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में 29 प्लस 5 यानी कि 34, that is equal to 2A. राइट हैंड साइड में बिकॉज प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा. ओके, इसमें से A का वैल्यू क्या होगा? A का वैल्यू आ जाएंगे 34/2 यानी कि 17. ओके, इसमें से आप देखिए B का वैल्यू क्या होगा? B इज गोइंग टू बी, चाहे इक्वेशन नंबर 1 या 2 में आप अप्लाई कर लो. ओके, B का वैल्यू क्या होगा? 29, इक्वेशन नंबर 1 के बेसिस पे 29 माइनस A, that is equal to B, that is 29 minus 17, isn't it? 29 minus 17, so आपका कैंसर आ जाएगा 12 आ जाएंगे B का वैल्यू, B इक्वल टू 12. सो अभी हमें A और B का वैल्यू मिला. ऑलराइट, अब आप देखिए हमारा पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ. अब क्या बनाएंगे हम? इसको A को A डैश बनाना है. A need to be converted as A dash. अब A dash का वैल्यू क्या था? A plus 3 and B dash का वैल्यू क्या था? B plus 3. A का वैल्यू कितना था? आई थिंक A का वैल्यू हमें 17 मिले थे. सो 17 plus 3 20 और ये 12, ये हो गया 15, है ना. अब आप देखिए दिस वाज C dash, A dash, B dash, दिस इज A dash, ये B dash है और ये C dash हो जाएगा. इसका वैल्यू A dash का वैल्यू कितना? 20, इसका 50. सो C dash का मैग्नीट्यूड क्या होगा? C dash इज अंडर रूट ऑफ 20 square plus 15 square. Okay, here this is equal to 20 square means 400, isn't it? 400. Okay, plus 15 square is 225. 225. This will give the answer as 225 plus 400, that is 625. Okay, now it's very clear. C dash का वैल्यू कितना आएंगे? अंडर रूट ऑफ 625, that's equal to 25 unit. All right, so that was the value of C dash. Here comes your next question. The question says somebody was standing on a bus stop like this. ठीक है, what happened? All of a sudden
the rain started and the velocity of rain was say 20 meter per second in the downward direction. ओके इस तरीके से था। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद देखिए सेम पर्सन, रेन तो है ही है, साथ साथ विंड और ब्लो करना स्टार्ट कर दिया विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। सो ये देखिए ये माइनस वाई एक्सिस डायरेक्शन में और ये माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में विंड फ्लो करना विंड ब्लो करना स्टार्ट किया with a speed of 10 meter per second. Now, if he was having an umbrella with him, इसको किस डायरेक्शन में पकड़ना चाहिए? That's a question. At what direction he need to hold the umbrella under this situation so that he can keep himself dry. Okay, that's a question. So एक चीज मुझे बताइए, अगर ये हवा नहीं चल रहे होते, तो ये हवा नहीं चल रहे होते, ये बंदा क्या करते हैं? He should have hold his umbrella in this direction, है ना, ऐसे पकड़ लेते हैं अम्ब्रेला, यानी कि जिस डायरेक्शन में वाटर ड्रॉपलेट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला का डायरेक्शन होना चाहिए। सो ये जो वाटर ड्रॉपलेट का जो डायरेक्शन है, इसको मैं बताना चाहूंगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू द मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ, देखिए रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, मैंने ये दोनों को उठाया r विथ रेस्पेक्ट टू m, सो मैंने लिख दिया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। ये उस सिचुएशन है जब विंड ब्लो नहीं कर रहे थे, नो विंड, ओके इधर कोई विंड नहीं है, समझ में आया? अब आप देखिए व्हाट्स गोइंग टू हैपन हियर इज दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब विंड और ऐसे ब्लो करने लगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू द मैन, velocity of wind with respect to man, this is velocity of rain with respect to ground। अब आप देखिए ये हो गया नया velocity of rain with respect to man, velocity of rain with respect to man, ये हो गया नया velocity, ठीक है। ये एंगल मान लो आप थीटा, इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू हमें गिवन था 20, इसका गिवन वैल्यू कितना है 10। अब दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। अब अम्ब्रेला इन्हें कैसे पकड़ना है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला पकड़ना होता है, फाइन। सो इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला पकड़ना है, दैट मींस ये हो गया डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, है ना, ओके। सो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया। सो सिंपल सी बात है, हमें इस पे थीटा एंगल फाइंड आउट करना है ना। सो लेट दिस ट्रायंगल बी ABC, ABC। अब आप इसको थोड़ा देखिए, ऐसे देखिए, है ना, ये C है जहां पे एंगल है थीटा, C के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में क्या है आपका AB, क्लियर हो गया। नाउ AB का वैल्यू कितना 10, BC का वैल्यू आप देखिए 20, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। सब आप देखिए tan ऑफ थीटा इक्वल क्या हो गया 10/20 which is equal to 1/2, ठीक है। सो थीटा का क्या वैल्यू आएगा, थीटा इक्वल टू tan inverse of 1/2। That means this person need to hold his umbrella at an angle of theta equal to tan inverse 1/2 with respect to the vertical।